let's start our lecture. Good morning. Good morning. Good morning, Good ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. All right. Let's revise what we have done in last lecture. Last lecture में हमने पहले सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक दैट इज एप्लीकेशन की देखा था. What is the importance of that server side state management technique? That it maintain the information for the entire website and for all the users. Application state management technique है that is a single data repository जिसका यूज करके हम पूरी वेबसाइट के लिए सारे यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हैं, राइट. सो अगर हम सारे यूजर्स के लिए एक ही वेरिएबल के अंदर अगर हम वैल्यू मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली वी नीड टू मेंटेन कॉन्करेंसी फॉर दैट वैल्यूज. सो कॉन्करेंसी मेंटेन करने के लिए वी हैव सीन दैट वी हैव टू मेथड्स दैट इज लॉक एंड अनलॉक. अगर हमें कोई वैल्यू को मॉडिफाई करना है within application, then what we need to do, we need to lock the application, and after that we will modify that particular name value pair within application, and after that we will unlock the application with the help of unlock method. All right. Then we have seen that it is very simple to create. Means if you want to store the value within this application, then we can use application parenthesis double quotation the name, that is we can also say it as a variable name, and after that equal to value. We can write like this way. And if you want to retrieve the value from the application, then again the same procedure. We can write some variable name is equal to application parenthesis double quotation and the name from which we want to retrieve the value. All right, so these were the things which we have seen for the application. Yeah, along with that we have also seen one practical example within which I have demonstrated that what is the difference between application and session. That if we maintain session, then it is per user, but if we maintain application, then it is for whole application and it is available to all the users. All right. After that, we have started with themes and CSS. Themes is an ASP.NET feature which is used to format pages and controls, right? As you know, what is CSS? CSS is cascading style sheet. Means both are the technique which can be used to format controls and pages in ASP.NET. But themes is particularly available within ASP.NET, right? We have seen that within themes, it is a skin template. What is skin? It is a set of properties, right, which we use to set for pages and controls. There are two types of skin, that is default skin and name skin. If we provide skin ID within the skin, then it is considered as a name skin, and if we don't provide skin ID, then it is considered as a default skin. All right. Then we have also seen one example within which I have demonstrated. First, I have demonstrated what is default theme, right? So for that we have taken 4 text boxes and we have added skin file within our application. And as you have seen that whenever we add skin file, it asks us that whether we want to place our skin file in app_themes folder or not, right? So obviously we have selected yes. So the skin file was created within app_themes folder. Within that it was created within skin file folder, right? All right. And the extension of the skin file was .skin. Within that file we have created skin for text box control, and we have applied that theme skin to the page. अगर हमें कोई भी skin को पेज के ऊपर अप्लाई करना है, then what we need to do, we need to select themes property of the page और उसके अंदर हमें skin file को set करना है. So this was the procedure how we can apply the default theme. Sorry, default skin. अगर हमें name skin को अप्लाई करना है, then the thing is that हमें पेज के ऊपर themes property के अंदर skin file का नेम तो सेट करना ही पड़ेगा, but along with that we also need to set कि कौन से कंट्रोल के ऊपर वो स्किन अप्लाई करनी है. और अगर हमें ऐसा सेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पर्टिकुलर कंट्रोल की स्किन आईडी प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा, राइट. दिस वाज द थिंग कि हम कैसे डिफॉल्ट स्किन और नेम स्किन को हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट. ऑलराइट. देन आई हैव आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड CSS. ASP.NET में CSS भी क्रिएट करना इट्स वेरी इजी. हमने स्टाइल शीट फाइल ऐड की थी हमारी वेबसाइट के अंदर
और वो ऐड करने के बाद हमने उसके अंदर .txt नाम का CSS क्लास क्रिएट किया था ताकि हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर वो पर्टिकुलर स्टाइल शीट को अप्लाई कर पाए। बट एज इट वाज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, मतलब एक अलग फाइल में हमने वो क्लास क्रिएट किया था। अगर हमें वो पेज के ऊपर लिंक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा, और लिंक टैग के अंदर हमने वो स्टाइल शीट फाइल को सेट कर दिया था। एंड आफ्टर दैट हमें जो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर वो CSS अप्लाई करना था, हमने वो टेक्स्ट बॉक्स की CSS क्लास प्रॉपर्टी को सेट किया था। So we have set CSS class is equal to txt, right? So स्टाइल शीट फाइल के अंदर txt क्लास के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग हमने सेट किया था वो सिर्फ वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम अप्लाई हो गया था। सो ये सारी चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। दैट इज थीम्स के अंदर भी हमने थियोरी और प्रैक्टिकल देखा था, और CSS के लिए हमने प्रैक्टिकल देख लिया था, राइट? अब हमें क्या करना है, आपको अगर याद हो तो हमने थियोरी बीच में से छोड़ी थी ताकि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख पाए। सो हम वही स्टार्ट करते हैं, राइट? यहाँ से हमने लीव किया था, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली। ऑलराइट, सो अप्लाइंग थीम्स एट रन टाइम। अगर हमें रन टाइम के ऊपर थीम पेज के ऊपर अप्लाई करनी है, राइट? जो एग्जाम्पल हमने देखा था उसके अंदर हमने थीम्स कब अप्लाई की थी? ऑब्वियसली डिजाइन टाइम के अंदर हमने प्रॉपर्टीज सेट की थी और वो प्रॉपर्टीज का यूज करके पर्टिकुलर पेज के ऊपर कंट्रोल्स के ऊपर वो थीम अप्लाई हो गई थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे रन टाइम पे थीम अप्लाई करनी है, राइट? सो अगर मुझे रन टाइम पे थीम अप्लाई करनी है तो मुझे पेज क्लास की प्री इनिट जो इवेंट है उसका यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, अगर मुझे रन टाइम पे थीम अप्लाई करनी है तो मुझे प्री इनिट इवेंट ऑफ द पेज वो यूज करना पड़ेगा, राइट? सो इट इज वेरी सिंपल। आप प्री इनिट इवेंट ओपन करोगे कोड व्यू में, उसके अंदर यू नीड टू राइट अ सिंगल स्टेटमेंट दैट इज पेज डॉट थीम इज इक्वल टू द नेम ऑफ द स्किन फाइल, दैट इज स्किन फाइल डॉट स्किन। अगेन आई रिपीट, इट इज वेरी सिंपल टू अप्लाई थीम एट रन टाइम। प्री इनिट इवेंट के अंदर आप लिखोगे पेज डॉट थीम इज इक्वल टू स्किन फाइल डॉट स्किन विद इन डबल कोटेशन। अब आपको पता है कि ये प्री इनिट इवेंट आपको कैसे मिलेगी। हमने VB.NET में पढ़ा था कि अगर कोई कंट्रोल या फिर फॉर्म की डिफॉल्ट इवेंट हमें नहीं लेनी है लेकिन कोई और इवेंट लेनी है तो हम क्या करेंगे, कोड व्यू में ऊपर हमें दो कॉम्बो बॉक्स मिलेंगे। सो द लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉम्बो बॉक्स है उसमें से हम वो एंटिटी सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें इवेंट चाहिए, और राइट हैंड साइड के कॉम्बो बॉक्स में से हम इवेंट सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी इवेंट हमें यूज करनी है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कंट्रोल का नेम नहीं सिलेक्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड के कॉम्बो बॉक्स के अंदर, बट वी नीड टू सिलेक्ट पेज। और राइट हैंड साइड के कॉम्बो बॉक्स में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, प्री इनिट। सो ये इवेंट अपने आप आ जाएगी। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो ये स्लाइड के ऊपर जो प्रोटोटाइप लिखी है इवेंट की वो सेम आप टाइप भी कर सकते हो, राइट? और उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऐड करना है, दैट इज स्किन फाइल डॉट स्किन, राइट? सो वो अपने आप पेज के ऊपर एट रन टाइम वो पर्टिकुलर थीम ऐड कर देगा। ऑलराइट, देयर इज आल्सो अनदर वे, एज वी हैव सीन कि अगर हमें ग्लोबली कोई भी चीज अप्लाई करनी है हमारे पेज के अंदर या फिर हमारी वेबसाइट के अंदर, राइट? और अगर हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं देन वी हैव web.config फाइल। सो जो चीज हमने पर्टिकुलर पेज के लिए की थी, अगर हमें वही चीज वेबसाइट के अंदर सारे पेजेस के लिए करनी है देन व्हाट वी कैन डू, web.config फाइल के अंदर आपको system.web टैग मिलेगा, और वो system.web टैग के अंदर यू नीड टू टाइप दिस वन स्टेटमेंट, दैट इज पेजेस टैग का यूज करना पड़ेगा। पेजेस टैग की थीम प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, और थीम प्रॉपर्टी के अंदर आपको स्किन फाइल का नेम सेट करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे डॉट स्किन नहीं लिखा है बिकॉज वो अपने आप वो उसको कंसिडर कर देगा कि उसका एक्सटेंशन डॉट स्किन है, राइट? सो दिस इज द स्टेटमेंट विच यू नीड टू स्पेसिफाई अगर आपको web.config फाइल के अंदर आप सारे पेजेस के लिए थीम को सेट करना है, राइट? सो दीज आर द वेज कि अगर आपको पर्टिकुलर पेज के लिए
रन टाइम के रन टाइम पे अगर आपको थीम सेट करनी है तो प्री इनिट इवेंट का यूज कर सकते हो, और अगर आपको सारे पेजेस के लिए एक ही थीम यूज करनी है तो आप web.config फाइल में भी पेजेस टैग के अंदर थीम प्रॉपर्टी को आप सेट कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द वेज कि आप कैसे थीम्स को रन टाइम पे अप्लाई कर सकते। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी सम थियोरी अबाउट CSS। आपको पता ही है CSS, लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी थियोरी देख लेते हैं, राइट। Like themes, CSS is also used for the standardization of the website formatting, right, ताकि आपको consistent appearance मिले throughout the application। जो CSS हमने पेज के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए अप्लाई की थी, वही सेम CSS हम दूसरे पेजेस के ऊपर भी टेक्स्ट बॉक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। हमें CSS क्लास इसलिए सेट करना पड़ा था वो पर्टिकुलर एग्जांपल में, बिकॉज हमने जो हमने जो स्टाइल शीट के अंदर जो CSS लिखी थी वो हमने क्लास के फॉर्म में लिखी थी। लेकिन अगर आपको टैग के ऊपर डायरेक्टली कोई भी चीज अप्लाई करनी है तो उस हिसाब से भी आप CSS लिख सकते हो, और वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। हम उसका भी थियोरी में एग्जांपल देखेंगे, राइट। सो अगर आपके वेबसाइट के ऊपर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग चाहिए ताकि आप कंसिस्टेंट अपीयरेंस दे सको पूरी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप CSS का भी यूज कर सकते हो। मीन्स अगर आपको थीम्स के ऊपर आपके मतलब इफ यू आर फेमिलियर विद थीम्स तो आप थीम्स यूज करो, अगर आपको CSS अच्छी तरह से आती है तो आप CSS यूज करो, राइट। दोनों में से कोई भी एक चीज आप ASP.NET के अंदर यूज कर सकते हो, बट ओवर हियर वी नीड टू रिमेंबर इज themes is only available in ASP.NET। ओके, मॉडर्न ब्राउजर्स भी CSS को सपोर्ट करता है, राइट। सो हम इसलिए भी हम CSS का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको CSS अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टाइल शीट टेम्पलेट है उसका यूज करना पड़ेगा, और वो आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड करके CSS आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो हमने क्या किया था, स्टाइल शीट फाइल ऐड करने के लिए अगेन द सेम प्रोसीजर, राइट क्लिक ऑन द वेबसाइट विद इन सोल्यूशन एक्सप्लोरर, सिलेक्ट ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम में से जो लिस्ट मिला था उसमें से वी हैव सिलेक्टेड स्टाइल शीट टेम्पलेट। जैसे ही हमने स्टाइल शीट टेम्पलेट को सिलेक्ट किया था हमें फाइल मिली थी दैट इज stylesheet.css, राइट। और वो फाइल हमने हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड कर दी थी, और वेबसाइट के अंदर ऐड करने के बाद हमने .txt CSS क्लास क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए प्रॉपर्टीज सेट की थी, राइट। एज यू नो के स्टाइल शीट ऑब्वियसली कंसिस्ट ऑफ रूल्स। वो रूल्स क्या डिफाइन करते हैं, वो फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम पर्टिकुलर पेज के ऊपर पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर ये CSS अप्लाई कर पाए, राइट। सो दिस इज द थिंग कि आप CSS कैसे बना सकते हो। यू नीड टू कंसीडर कि आपको रूल्स बनाने हैं, राइट। रूल्स किसके लिए बनाने हैं, ऑब्वियसली आपको अगर कोई चीज पेज के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, राइट, तो उसके लिए आप रूल्स बना सकते हो, राइट। और वो पर्टिकुलर रूल आप पेज के ऊपर बाद में अप्लाई कर सकते हो। नाउ ईच रूल नेम हैज टू पार्ट्स, राइट। रूल नेम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, दैट इज बिफोर डॉट, राइट, दैट इज बिफोर डॉट एंड आफ्टर डॉट। बिफोर डॉट जो है दैट इज द पोर्शन जिसके अंदर आप टैग का नेम लिख सकते हो कि जिसके ऊपर आपको रूल अप्लाई करना है, राइट। अगेन आई रिपीट, जो डॉट के पहले का पोर्शन है, राइट, उसके अंदर आप टैग का नेम लिख सकते हो, राइट, जिसके ऊपर आपको रूल अप्लाई करना है। और डॉट के बाद का जो पोर्शन है वहां पे आप यूनिक CSS क्लास नेम दे सकते हो। बट द थिंग इज दैट अगर हम ये पहला वाला पार्ट स्किप करते हैं देन एक्सप्लिसिटली हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कंट्रोल के ऊपर हमें ये CSS अप्लाई करना है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था। बिकॉज हमने एग्जांपल में सिर्फ डॉट txt लिखा था विच वॉज द CSS क्लास नेम, राइट। इसलिए हमें पर्टिकुलर कंट्रोल को सिलेक्ट करना पड़ा था और उसके CSS क्लास प्रॉपर्टी के अंदर हमें वो txt को सेट करना पड़ा था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वो पर्टिकुलर CSS डेवलप करने के वक्त अगर डॉट से पहले मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिखा होता तो सारे टेक्स्ट बॉक्स के लिए वो अपने आप अप्लाई कर देता, राइट।
बिकॉज द फर्स्ट पोर्शन विद इन दिस रूल नेम वो क्या इंडिकेट करता है, वो टैग नेम इंडिकेट करता है, राइट, कि जिसके ऊपर हमें ये रूल अप्लाई करना है, राइट. सो यू नीड टू रिमेम्बर कि अगर हम रूल डिफाइन करते हैं तो रूल नेम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज बिफोर डॉट एंड आफ्टर डॉट. अगर हम बिफोर डॉट को कंसीडर करें तो वो टैग नेम आएगा कि जिसके ऊपर हमें ये रूल्स अप्लाई करने हैं, और आफ्टर डॉट मीन्स इट इज अ यूनिक क्लास नेम, कि हमें एक पर्टिकुलर क्लास नेम देना पड़ेगा ताकि हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए. ऑलराइट, सो देयर आर डिफरेंट वेज कि हम कैसे रूल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज, अगर हम सिर्फ टैग नेम लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज ओवर हियर इट इज कंसिडर्ड एज H1, राइट. अगर हम सिर्फ टैग नेम लिखते हैं और वहां पे हमने कोई भी डॉट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो क्या होगा, दैट रूल विल बी अप्लाइड टू ऑल सर्च टैग्स अंडर द पेज. मतलब जो भी पेज के साथ हम ये स्टाइल शीट को लिंक करेंगे, वो पेज के ऊपर जितने भी H1 टैग होंगे, वो सारे H1 टैग के ऊपर ये रूल अपने आप अप्लाई हो जाएगा. अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, दैट इज हम सिर्फ स्टैंडर्ड टैग नेम का यूज करते हैं. अगेन आई रिपीट, अगर CSS दैट इज स्टाइल शीट फाइल के अंदर अगर हमें CSS अप्लाई करना है, बट हमें पर्टिकुलर टैग के ऊपर अप्लाई करना है, तो हम ये मेथड का भी यूज कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, सिर्फ टैग नेम लिखेंगे. फॉर हियर फॉर एग्जांपल इट इज H1, राइट. एक स्टैंडर्ड टैग नेम है वो हम लिखेंगे, उसके बाद कोई भी डॉट नहीं लिखेंगे. तो वो क्या कंसीडर करेगा कि ये जो वर्ड लिखा है वो एक टैग है, और उसके अंदर में कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी स्पेसिफाई करते हैं, ये पर्टिकुलर टैग के लिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऐसा वो कंसीडर कर लेगा. इट मीन्स ये डेवलप करने के बाद हम जो भी पेज के ऊपर ये फाइल को सेट करेंगे, ये फाइल को लिंक करेंगे, तो वो पेज के ऊपर जितने भी H1 टैग होंगे, उसके अंदर वो क्या सेट कर देगा, फॉन्ट वेट बोल्ड सेट कर देगा. मतलब वो बोल्ड के अंदर वो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, राइट. सो दिस इज द वन वे कि आप कैसे CSS बना सकते हो. अनदर इज, जैसे हमने किया था, राइट, कि डॉट के पहले का पोर्शन हम स्किप करते हैं, राइट, और सिर्फ CSS क्लास नेम का यूज करते हैं. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो सारे टैग्स या फिर सारे कंट्रोल्स जिसके ऊपर हमें ये पर्टिकुलर CSS क्लास अप्लाई करना है, उसकी CSS क्लास प्रॉपर्टी के अंदर हमें ये क्लास नेम सेट करना पड़ेगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल, हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसके अंदर हमने TXT लिया था क्लास नेम, राइट. यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट है. अगर यही सेम चीज मैं अपने स्टाइल शीट फाइल के अंदर कॉपी करती हूँ, राइट, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फॉन्ट वेट बोल्ड चाहिए, वो सारे टेक्स्ट बॉक्स के साथ CSS क्लास मुझे सेट करना पड़ेगा, दैट इज बोल्ड टेक्स्ट. तो वो सारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये एक ही फॉर्मेटिंग होगा, दैट इज उसके अंदर जो भी फॉन्ट डिस्प्ले होंगे दैट विल बी इन अ बोल्ड स्टाइल, राइट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर सिर्फ आप क्लास नेम यूज करते हो तो आपको वो सारे टेक्स्ट के ऊपर वो क्लास नेम अप्लाई करना पड़ेगा, राइट. तो वो पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर आपको ये फॉर्मेटिंग मिलेगा. ऑलराइट, अनदर इज बोथ द पार्ट, राइट, दैट इज अगर हम फुल कंप्लीट रूल नेम देते हैं तो क्या होगा, राइट. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो डॉट के पहले का पोर्शन है दैट इज दिस वन, दैट इज द टैग नेम, और डॉट के बाद का जो पोर्शन है दैट इज क्लास नेम. इट मीन्स H1 टैग के ऊपर मुझे ये क्लास स्पेसिफाई करना है, राइट. See over here, it is written, the rules are applied to the specified tag with the specified class name, right. आपको H1 टैग के ऊपर तो ये रूल अप्लाई होगा ही, लेकिन ऐसे टैग के ऊपर ये रूल अप्लाई होगा जो टैग की CSS क्लास प्रॉपर्टी मैंने क्या सेट की है, बोल्ड टेक्स्ट. मतलब वो अपने आप कंसिडर नहीं करेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली क्लास नेम सेट किया है, राइट. अगर हम एक्सप्लिसिटली क्लास नेम सेट नहीं करते तो वो हमने देखा कि सारे H1 के ऊपर वो ऑटोमेटिक अप्लाई कर देगा. लेकिन जैसे थीम के अंदर डिफॉल्ट स्किन एंड नेम स्किन,
डिफॉल्ट स्किन अपने आप सारे वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अगर आपको नेम स्किन अप्लाई करनी है तो स्किन आईडी सेट करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। लाइकवाइज सीएसएस के अंदर भी यही है कि अगर आप टैग नेम डॉट क्लास नेम स्पेसिफाई करते हो तो वो H1 टैग के ऊपर तो अप्लाई करेगा ही, लेकिन ऐसे H1 टैग के ऊपर वो अप्लाई करेगा जिसके अंदर आपने CSS क्लास क्या सेट किया है, दैट इज बोल्ड टेक्स्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दीज आर द 3 डिफरेंट वेज कि आप कैसे CSS क्रिएट कर सकते हो, राइट? अभी तक हमने अप्लाई नहीं की है। ऑलराइट, सो अगर हमें CSS अप्लाई करनी है हमारे वेब पेज के ऊपर स्टाइल शीट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव ऑलरेडी सीन, हमें हेड टैग के अंदर लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा, राइट? सो द सेम थिंग वी हैव कंसीडर्ड विद इन आवर एग्जांपल आल्सो, राइट? दैट इज लिंक टैग के अंदर मुझे उसके एट्रीब्यूट्स है वो स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, दैट इज href एट्रीब्यूट, दैट इज द रेफरेंस, rel रिलेशनशिप और टाइप, कि हमें कौन सी टाइप के अंदर वो पर्टिकुलर फाइल को कंसीडर करना है, राइट? So these are the attributes which you need to set for a link tag on the page कि जहां पे हमें ये पर्टिकुलर स्टाइल शीट को अप्लाई करना है। लिंक टैग इसलिए यूज करना पड़ेगा बिकॉज हमने अलग फाइल के अंदर ये CSS क्रिएट की थी, राइट? सो दैट्स व्हाई यू नीड टू कंसीडर ओवर हियर कि आपको एक्सप्लिसिटली लिंक टैग के साथ आपको उसको लिंक करना है। और आपने शायद ये पढ़ा भी होगा कि अगर आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करते हो तो लिंक टैग आपको यूज करना पड़ेगा। एंड अनदर वे, अगर आप लिंक टैग का यूज नहीं करते और स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी का यूज करते हो, तो यहाँ पे भी आप वही चीज अप्लाई कर सकते हो, राइट? स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या सेट करना है? आपको ये पर्टिकुलर स्टाइल शीट फाइल सेट करनी है, राइट? सो यहाँ पे भी आपको यही कंसिडर करना है कि अगर आपने क्लास के फॉर्म में वो पर्टिकुलर स्टाइल शीट बनाई है तो आप वो पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर CSS क्लास सेट करोगे तो ही वो अप्लाई करेगा, वो अपने आप कुछ भी अप्लाई नहीं करेगा। बट इफ वी सेट स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी ऑफ द पेज, देन you need to consider there is a prerequisite कि आपकी जो फाइल है that is stylesheet.css वो फाइल कहाँ पे होनी चाहिए? स्किन फाइल फोल्डर जो app_themes फोल्डर है उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो ये फोल्डर के अंदर नहीं होगी तो आप ये स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते। फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जो लिंक टैग का हमने यूज किया उस हिसाब से आपको उसको सेट करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, अगर आपको लिंक टैग को यूज नहीं करना है, अगर आपको स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी का यूज करना है पेज के ऊपर तो भी आप कर सकते हो। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, उसके अंदर भी आपको CSS फाइल है वही सेट करनी है। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर इज, तब ये जो स्टाइल शीट फाइल है वो कहाँ पे होनी चाहिए? स्किन फाइल के अंदर होनी चाहिए जो app_themes फोल्डर के अंदर है। इट मीन्स हमने जो स्किन फाइल डॉट स्किन बनाई थी वही फोल्डर में ये स्टाइल शीट डॉट CSS फाइल होनी चाहिए, तो ही ये स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी वो उसको डिटेक्ट करेगा, वरना वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट स्टूडेंट्स? सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कंसिडर फॉर CSS। सो अब तक हमने थीम्स और CSS के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखा और थियोरी भी देखी, राइट? सो दैट पोर्शन इज कंप्लीटेड ओवर हियर। अब हम मास्टर पेज की थियोरी देखेंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी मास्टर पेज को प्रैक्टिकली बहुत बार देखा है, तो हम उसकी भी थियोरी को यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, राइट? ऑलराइट, सो एज यू नो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि आप मास्टर पेज अपनी वेबसाइट के अंदर कब ऐड कर सकते हो? अगर आपको पूरी वेबसाइट के अंदर सारे पेजेस के ऊपर आपको कंसिस्टेंट लेआउट चाहिए तो आप मास्टर पेज का यूज कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंसिस्टेंट लेआउट, राइट? हमने थीम्स के अंदर क्या देखा था? कंसिस्टेंट अपीयरेंस या फिर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज किया है? कंसिस्टेंट लेआउट। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर स्ट्रक्चरिंग करना है तो मास्टर पेज यूज होगा, फॉर्मेटिंग करना है तो थीम्स यूज होगा। These are the two features which are available in ASP.NET। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है
कि which are the concept or which are the technique that are used in ASP.NET for structuring and formatting the pages. तब मैंने बोला था कि आपको ऐसा लिखना है कि स्ट्रक्चरिंग के लिए हम मास्टर पेज का यूज कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग के लिए थीम्स का यूज कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच यू नीड टू कंसीडर ओवर हियर. ऑलराइट, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मास्टर पेज? कि हम सिंगल मास्टर पेज को डिफाइन कर सकते हैं, राइट? पूरी वेबसाइट के अंदर हमें अगर प्रॉपर लुक देना है, स्टैंडर्ड बिहेवियर अप्लाई करना है फॉर हेडर, फुटर एंड लिंक्स, तो हम सिंगल मास्टर पेज का यूज कर सकते हैं. या फिर अगर आपको पेजेस के ग्रुप भी बनाने हैं और उसके ऊपर वो पर्टिकुलर मास्टर पेज अप्लाई करना है, देन दैट इज आल्सो पॉसिबल, जैसे हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में किया है. गेस्ट यूजर के लिए जो मास्टर पेजेस थे, दैट इज फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इंडेक्स पेज, उसके लिए हमने एक मास्टर पेज बनाया था, दैट वाज मास्टर पेज डॉट मास्टर. आफ्टर दैट हमने स्टूडेंट का होम एरिया बनाया था. स्टूडेंट के होम एरिया के लिए हमने स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर क्रिएट किया था और वो हमने सारे वेब पेजेस के ऊपर जो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट होम एरिया के है उसके ऊपर हमने अप्लाई किया था. लाइकवाइज हमने फैकल्टी और एडमिन के लिए भी होम एरिया क्रिएट किए थे और उसके अंदर हमने 2 मास्टर पेजेस क्रिएट किए थे, वन फॉर फैकल्टी एंड अनदर फॉर एडमिन. और वो पर्टिकुलर यूजर के जो पेजेस थे उसके ऊपर हमने वो मास्टर पेज अप्लाई कर दिया था. मतलब अगर आपको पूरी वेबसाइट के अंदर कंसिस्टेंट लेआउट चाहिए, कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो आप एक मास्टर पेज भी डिफाइन कर सकते हो, राइट? बट आई डोंट थिंक दैट इज रिलायबल इन ईच एंड एवरी वेबसाइट. सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पेजेस का ग्रुप क्रिएट करेंगे और वो पर्टिकुलर पेजेस के ग्रुप के लिए हम एक मास्टर पेज डिफाइन कर सकते हैं, ताकि अगर वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेजेस यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें कंसिस्टेंट लेआउट मिले. आफ्टर दैट एक बार अगर हम कोई भी मास्टर पेज क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद हम इंडिविजुअल कंटेंट पेज भी क्रिएट कर सकते हैं. व्हाट इज इंडिविजुअल कंटेंट पेज? कंटेंट पेज मीन्स द वेब पेजेस दैट वी आर क्रिएटिंग फ्रॉम द master page. Again I repeat, content page means the web pages that we are creating from the master page. मतलब अगर मैं स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर कंसिडर करूं, राइट, तो उसके लिए कंटेंट पेजेस कौन से बनेंगे? दैट इज स्टूडेंट होम, अपलोड फोटो, लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स. दीज आर द कंटेंट पेजेस फॉर स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर. बिकॉज मैंने स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर क्रिएट किया और उसके ऊपर से फिर मैंने ये सारे कंटेंट पेजेस को क्रिएट किए थे, राइट? सो दिस इज फॉर द कंटेंट पेज. ऑलराइट, पहले हमें क्या करना है? पहले यूजर मास्टर पेज क्रिएट करेगा, राइट? मास्टर पेज क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट वो पर्टिकुलर मास्टर पेज के ऊपर से कंटेंट पेजेस क्रिएट करेगा, राइट? नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? हम जब भी कोई भी मास्टर पेज क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर से हम कंटेंट पेजेस क्रिएट करते हैं, हमें दिखाई ऐसे देता है कि उसने वो पर्टिकुलर सारे कंटेंट पेजेस के ऊपर वो मास्टर पेज अप्लाई कर दिया है, राइट? हम अप्लाई वर्ड यूज करते हैं, राइट? और अगर हम देखते हैं तो वही होता भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट दोनों पेज अलग अलग होते हैं. सिर्फ हमें दिखाने के लिए वो हमें मर्ज करके दे देता है. अगेन आई रिपीट, दोनों पेजेस अलग अलग होते हैं, सिर्फ हमें दिखाने के लिए वो क्या करता है, दोनों पेजेस को मर्ज करता है, ताकि हमें वो कंबाइंड लेआउट मिले कि अगर हम ये स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और ये कंटेंट पेजेस के कंटेंट है, तो हमें अगर दोनों चीज साथ में देखनी है तो वो कैसे दिखाई देगी, राइट? वरना वो दोनों एंटिटी, दैट इज मास्टर पेज एंड द कंटेंट पेजेस, आर टू डिफरेंट थिंग्स. लॉजिकली हमें वो दिखाई देते हैं, लेकिन फिजिकली पेजेस के ऊपर वो दोनों मर्ज नहीं होते हैं. इसीलिए जब भी हम पेज की प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज मास्टर पेज फाइल, उसके अंदर हमें वो मास्टर पेज का नेम मिलेगा जो यहाँ पे उसको सेट करना है, राइट? आई एम यूजिंग द वर्ड उसको सेट करना है, उसको मर्ज करना है, दैट इज द प्रॉपर वर्ड, दैट इज उसको मर्ज करना है, राइट? सो दिस ऑल्सो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि वो पहले से ही सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर देते. अगर ऐसा होता तो क्या प्रॉब्लम होती
कि एक बार मास्टर पेज अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद अगर हम कोई चेंजेस करते वो सारे पेजेस के ऊपर नहीं दिखाई देते। लेकिन हमने ये भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि एक बार कोई मास्टर पेज क्रिएट हो गया, उसके ऊपर से हमने जो भी कंटेंट पेजेस क्रिएट किए, राइट, कंटेंट पेजेस क्रिएट करने के बाद अगर हम मास्टर पेज के ऊपर चेंजेस करते हैं, फिर भी वो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। इट इज बिकॉज मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज आर टू डिफरेंट एंटिटीज। वो एक ही उसको मर्ज करके ही सेव नहीं करता है, राइट। जब भी आप कोई भी कंटेंट पेज ओपन करोगे, एट दैट मोमेंट वो क्या करेगा, मास्टर पेज को पेज के साथ मर्ज करेगा और फिर आपको वो डिस्प्ले करेगा। इसलिए आप मास्टर पेज के ऊपर कभी भी आप उसके ऊपर चेंजेस करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको सारे कंटेंट पेजेस के ऊपर भी दिखाई देंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ मास्टर पेज, राइट। अनदर थिंग इज दैट आप मास्टर पेज को कभी भी इंडिविजुअली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप मास्टर पेज को रन नहीं कर सकते। अगर आपको रन करना है, अगर आपको वो पर्टिकुलर मास्टर पेज को देखना है कि वो कैसे दिखाई देगा, तो आपको उसके लिए वेब फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। दैट इज आपको वेब पेज क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर मोर प्रिसाइज आपको कंटेंट पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो ही आप देख पाओगे कि मास्टर पेज जब एग्जीक्यूट होता है तो कैसे दिखाई देगा। बिकॉज master page is the entity which is present in ASP.NET, which is just used to create the standard or a consistent layout for the pages. वो पेज एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, वो पेज सिर्फ स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट लेआउट डिफाइन करने के लिए है, राइट। इसलिए आप उसको इंडिविजुअली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो मास्टर पेज ऑब्वियसली हैज टू पार्ट्स। पहला तो मास्टर पेज इटसेल्फ, और उसके बाद उसके ऊपर से आप जो भी वन और मोर कंटेंट पेजेस करते हो, क्रिएट करते हो, दैट इज द सेकेंड पार्ट। वो तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। अनदर थिंग इज दैट कि आप मास्टर पेज के ऊपर जो भी कंपोनेंट्स ऐड करते हो, वो सारे कंपोनेंट्स आपको वो पर्टिकुलर मास्टर पेज आप जो जो वेब पेजेस के ऊपर इनहेरिट करोगे, इंक्लूड करोगे, वो सारे वेब पेजेस के ऊपर भी वो कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे, right? And the control which we need to consider for the master page, right, that is content placeholder control. Now what is the importance of this content placeholder control? Practically तो हमने देखा ही है, right? Content placeholder control हमें उस जगह पे मास्टर पेज के ऊपर प्लेस करना है जहां पे वो पर्टिकुलर रीजन को हमें कस्टमाइज करना है। अगेन आई रिपीट, कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल आपको मास्टर पेज के ऊपर वो पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रखना है जहां पे आपको वो रीजन को कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करना है मीन्स आपको डायनामिक कंटेंट चाहिए। जब भी यूजर वो कंटेंट चेंज करना चाहे तो वो चेंज भी हो सकते हैं, राइट। उस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल, राइट। इसीलिए हमने क्या किया था कि हमने जब भी मास्टर पेजेस क्रिएट किए थे, तो जहां पे एक्चुअल कंटेंट डिस्प्ले होने हैं पेजेस के, वहां पे हमने ये कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल को यूज किया था, राइट। ओके, नाउ मास्टर पेज का एक्सटेंशन क्या होगा, ऑब्वियसली डॉट मास्टर, वो तो हमने देखा था। फिर जब हमने फर्स्ट टाइम मास्टर पेज क्रिएट किया था, तब मैंने आपको ये भी दिखाया था मास्टर पेज के सोर्स व्यू में जाके कि यहाँ पे हमें @master डायरेक्टिव मिल रहा है, @page डायरेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज एज इट इज अ मास्टर पेज टेम्पलेट। सो ऑब्वियसली कंपाइलर को हमें बताना पड़ेगा कि ये नॉर्मल वेब फॉर्म नहीं है, ये मास्टर पेज है। इसीलिए अगर सोर्स व्यू में जाके आप मास्टर पेज का कंटेंट देखोगे तो फर्स्ट लाइन में आपको @master डायरेक्टिव मिलेगा, @page डायरेक्टिव नहीं मिलेगा, बिकॉज @master डायरेक्टिव इन्फॉर्म्स द कंपाइलर कि ये पेज मास्टर पेज है, राइट। और उसके साथ साथ आपको HTML, हेड, फॉर्म सारे टैग्स मिलेंगे, और उसके ऊपर आप दूसरे HTML और ASP.NET के कंट्रोल्स या फिर एलिमेंट्स भी प्लेस कर सकते हो। मीन्स द थिंग इज दैट यहाँ पे हमें कंसिडर करना है कि मास्टर पेज भी एक पेज ही है, बट इट इज द एंटिटी विच इज जस्ट यूज टू स्ट्रक्चर द पेज। इसीलिए जैसे नॉर्मल पेजेस के ऊपर हमें बाकी सारे टैग्स मिलते हैं, कंट्रोल्स मिलते हैं, वो सारी चीज भी हम मास्टर पेज के ऊपर यूज कर सकते हैं, राइट। सो द थिंग इज मास्टर पेज का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट मास्टर। कौन सा डायरेक्टिव यूज होगा,
मास्टर। और अगर हम पेज के लिए कंसिडर करें तो पेज के लिए एक्सटेंशन क्या होगा, .aspx, और उसके लिए डायरेक्टिव कौन सा होगा, @page। ऑलराइट, नाउ कंटेंट प्लेस होल्डर। जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जब भी मास्टर पेज क्रिएट होता है उसके ऊपर आप एक कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल देखोगे, राइट। लेकिन वो कहाँ पे रखा हुआ होता है, div टैग के अंदर डायरेक्टली ही रखा हुआ होता है। लेकिन मुझे वहां पे हमारे कस्टमाइज कंटेंट नहीं चाहिए, डायनामिक कंटेंट नहीं चाहिए, इसलिए हम जब भी मास्टर पेज डिजाइन करते थे हम क्या करते थे, पहले हम ये कंटेंट प्लेस होल्डर को रिमूव करते थे, पहले पूरा स्ट्रक्चर बना देते थे, फिर बाद में कंटेंट प्लेस होल्डर को उस जगह पे हम प्लेस करते थे जहां पे हमें डायनामिक कंटेंट चाहिए वेब पेजेस के, राइट। सो कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल, एज द नेम सेज, इट इज जस्ट अ प्लेस होल्डर कि वो कंटेंट के लिए यूज होगा, और ऑब्वियसली कस्टमाइज कंटेंट के लिए यूज होगा, या फिर यू कैन ऑल्सो से इट एज अ डायनामिक कंटेंट। नाउ अनदर थिंग इज दैट अब तक हमने जितने भी मास्टर पेजेस क्रिएट किए, हमने सारे पेजेस के ऊपर सिर्फ एक ही कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल को यूज किया था, राइट। लेकिन अगर आपको एक पेज के ऊपर मोर देन वन डायनामिक एरियाज क्रिएट करने हैं, तो वो सारे रीजन के अंदर आप अलग अलग कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल यूज कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक दैट कि एक मास्टर पेज के ऊपर एक ही कंटेंट प्लेस होल्डर होगा, नो। एक मास्टर पेज के ऊपर आप एक से ज्यादा भी कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल यूज कर सकते हो। वहां पे जितने भी आप कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल रखोगे वहां पे सब जगह पे कस्टमाइज कंटेंट या फिर डायनामिक कंटेंट आप डिस्प्ले कर सकते हो, राइट। ऑलराइट, कंटेंट पेजेस, व्हाट आर कंटेंट पेजेस, ऑब्वियसली हमने जैसे डिस्कस किया, कंटेंट पेजेस आर द वेब फॉर्म्स और वेब पेजेस जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, .aspx, और उसके लिए डायरेक्टिव कौन सा होगा, @page डायरेक्टिव। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट इज स्पेसिफाइड ओवर हियर कि कंटेंट पेज के @page डायरेक्टिव के अंदर ये एक जो प्रॉपर्टी है वो सेट की हुई आपको दिखाई देगी, that is master page file is equal to the name of the master page that you want to use for this particular page. So this is the most important thing कि अगर आपको पेज के ऊपर कोई भी मास्टर पेज अप्लाई करना है, राइट, तो there are two ways, या आप @page डायरेक्टिव के अंदर ये मास्टर पेज फाइल की जो प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, वो आप सेट कर सकते हो टू दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ द मास्टर पेज, या फिर आप पेज की प्रॉपर्टी की मास्टर पेज फाइल को भी आप सेट कर सकते हो। दैट इज डिजाइन व्यू में जाके पेज के ऊपर कहीं भी आप क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी विंडो में जाओगे, प्रॉपर्टी विंडो में भी आपको ये मास्टर पेज फाइल मिलेगी, राइट, जिसके अंदर आप ये मास्टर पेज डॉट मास्टर सेट कर सकते हो, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मास्टर पेज पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम पेजेस क्रिएट करते हैं वो पर्टिकुलर मास्टर पेज को इनहेरिट करके, इसीलिए हमें ये फाइल्स ये प्रॉपर्टी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम जब पेज क्रिएट करते हैं उस वक्त अगर हमने मास्टर पेज सिलेक्ट नहीं किया होता तो हमें ये प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ता। बट द राइट प्रोसीजर इज पहले आप मास्टर पेज क्रिएट करो, उसके बाद वो मास्टर पेज का यूज करके आप कंटेंट पेज क्रिएट करो। जैसे हमने हमारे जो वेब पेजेस क्रिएट किए थे, कैसे किए थे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, टेम्पलेट में से वी हैव सिलेक्टेड फर्स्ट ऑप्शन दैट इज वेब फॉर्म, पेज का नेम दिया था, फिर हमने वो चेकबॉक्स को सिलेक्ट किया था दैट इज सिलेक्ट मास्टर पेज, और फिर हमने ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया था तो उसने हमें लिस्ट ऑफ मास्टर पेजेस दिए थे, वहां से हमने मास्टर पेज को सिलेक्ट किया था और ओके बटन के ऊपर क्लिक किया था। दैट्स वाई उसने अपने आप ये प्रॉपर्टी सेट कर दी थी, हमें एक्सप्लिसिटली ये प्रॉपर्टी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, राइट। लाइक जैसे हमने थीम्स के लिए देखा था कि कैसे हम रन टाइम के ऊपर थीम्स अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही हम इसके अंदर भी देखेंगे, मास्टर पेज के अंदर भी देखेंगे कि कैसे हम रन टाइम के अंदर मास्टर पेज अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हम वो सीक्वेंस देखेंगे कि जब भी हम पर्टिकुलर पेज के लिए कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो कौन से सीक्वेंस में वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करता है ताकि हमें पेज के साथ साथ मास्टर पेज भी दिखाई दे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज यूजर पहले क्या करेगा, ऑब्वियसली कंटेंट पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा। आप
ब्राउजर के अंदर मास्टर पेज डॉट मास्टर रन नहीं करते हो, हमने क्या रन किया था, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट एएसपीएक्स पेज को रन किया था, राइट। सो व्हाट यूजर विल डू, इंडेक्स पेज डॉट एएसपीएक्स को रिक्वेस्ट करेगा। नाउ जब भी ये पेज की रिक्वेस्ट जाएगी, राइट, कंपाइलर क्या करेगा, पहले उसका @पेज डायरेक्टिव है उसको ऑब्जर्व करेगा। अगर @पेज डायरेक्टिव के अंदर मास्टर पेज फाइल प्रॉपर्टी के अंदर अगर उसको कोई वैल्यू मिलती है तो वो क्या करेगा, वो उसको कंबाइन करने की ट्राई करेगा। लेकिन कंबाइन करने से पहले वो ये भी चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर पेज के लिए फर्स्ट रिक्वेस्ट है या फिर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है। अगर वो फर्स्ट रिक्वेस्ट है तो पहले वो दोनों पेजेस को कंपाइल करेगा, उसके बाद उसको मर्ज करने की ट्राई करेगा। अगेन आई रिपीट, जब भी यूजर कोई भी कंटेंट पेज के लिए या फिर वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, सो ASP.NET के अंदर जो एग्जीक्यूशन इंजन है वो क्या करेगा, @पेज डायरेक्टिव जो है उसको ऑब्जर्व करेगा। उसके अंदर अगर मास्टर पेज स्पेसिफाई किया है, राइट, तो वो पर्टिकुलर मास्टर पेज को भी वो एक्सेस करेगा। फिर वो चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है वो फर्स्ट रिक्वेस्ट है ये पर्टिकुलर पेज के लिए या फिर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है। अगर वो फर्स्ट रिक्वेस्ट है तो पहले वो दोनों पेजेस को कंपाइल करेगा, अभी उसने मर्ज नहीं किया है, पहले वो दोनों पेजेस को कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद वो मास्टर पेज को कंटेंट पेज के साथ मर्ज करेगा। मर्ज करने के बाद जो भी कंटेंट प्लेस होल्डर है वो कंटेंट मास्टर पेज के ऊपर वो मर्ज करेगा। एंड आफ्टर दैट जो मर्ज किया हुआ पेज है वो हमारे ब्राउजर के अंदर हमें मिलेगा आफ्टर रेंडरिंग दैट पेज, राइट। सो द थिंग इज दैट पहले पेज के लिए रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट होने के बाद @पेज डायरेक्टिव वो चेक करेगा, अगर उसके अंदर मास्टर पेज है तो मास्टर पेज को भी वो रिट्राइव करेगा। रिट्राइव करने के बाद वो दोनों पेजेस को चेक करेगा कि ये फर्स्ट रिक्वेस्ट है या फिर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है। अगर फर्स्ट रिक्वेस्ट है तो दोनों पेजेस को वो पहले कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद मास्टर पेज कंटेंट पेज के साथ मर्ज करेगा। मास्टर पेज और कंटेंट पेज को मर्ज करने के बाद कंटेंट प्लेस होल्डर के जो कंटेंट है वो मर्ज करेगा एंड आफ्टर दैट वो पेज को रेंडर करेगा, दैट इज मर्ज पेज को वो रेंडर करेगा और हमारे ब्राउजर के अंदर वो हमें देगा। सो दीज आर द स्टेप्स विच आर फॉलोड कि जब हम कोई एक वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं अगर उसके साथ मास्टर पेज कंबाइन किया है तो। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग जो मैंने पहले आपको बताया कि आप कैसे मास्टर पेज को रन टाइम के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेम प्रोसीजर आप पेज की प्री इनिट इवेंट का यूज कर सकते हो और प्री इनिट इवेंट के अंदर आप उसकी मास्टर पेज फाइल प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो, दैट इज मास्टर पेज डॉट मास्टर। सो वहां पे हमने थीम प्रॉपर्टी को सेट किया था, यहाँ पे हम मास्टर पेज फाइल प्रॉपर्टी को सेट करेंगे टू द master page name with extension, right? Now what are the advantages of master page? Obviously traditionally पहले क्या होता था कि जब भी कोई डेवलपर को कोई भी वेब पेजेस क्रिएट करने हैं जो यूनिफॉर्म लुक और बिहेवियर प्रोवाइड करे तो वो क्या करता था, एक पेज के ऊपर वो पूरा डिजाइनिंग करता था, फिर वो कॉपी करता था सारा कंटेंट और सारे पेजेस के ऊपर पेस्ट कर देता था ताकि उसको कंसिस्टेंट लेआउट मिले, राइट। दिस वाज द थिंग व्हिच वाज डन ट्रेडिशनली, राइट, जो ASP के अंदर होता था। लेकिन ASP.NET के अंदर ये चीज करने के लिए हमारे पास फीचर है ऑफ ASP.NET दैट इज मास्टर पेज, राइट। सो वी कैन से दैट द एडवांटेजेस ऑफ मास्टर पेज इज दैट फर्स्ट एडवांटेजेस हम एक सेंट्रलाइज पेज बना सकते हैं जिसके ऊपर हम सारी कॉमन फंक्शनलिटीज को ऐड कर देंगे, राइट। सो व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं एट लेटर स्टेज तो हमें एक ही जगह पे चेंज करना होगा और वो चेंजेस सारे पेजेस के ऊपर अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमें सारे पेजेस को ओपन करके इंडिविजुअली चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर हमें जो ट्रेडिशनल मेथड थी अगर हम उसको फॉलो करें और एक पेज के ऊपर भी हम चेंज करना भूल जाएंगे तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। But it is not with the case that is with the master page because master page एक ही है, हमें एक ही जगह पे चेंज करना है और वो चेंजेस हमें सारे पेजेस के ऊपर दिखाई देगा, राइट।
अनदर थिंग इज ऑब्वियसली इट इज इजी टू क्रिएट, कॉमन सेट ऑफ कंट्रोल्स है, कोड है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं और सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहला मास्टर पेज क्रिएट किया था मास्टर पेज डॉट मास्टर, उसके ऊपर हमने हेडर बनाया था जिसके अंदर इमेज कंट्रोल यूज किया था, फिर एड रोटेटर कंट्रोल यूज किया था, कैलेंडर कंट्रोल यूज किया था, साइट में पाथ कंट्रोल यूज किया था, ट्री व्यू कंट्रोल यूज किया था, फुटर बनाया था, मीन्स हमने टैग्स का भी यूज किया था, उसके साथ साथ कंट्रोल्स का भी यूज किया था, और वो सारी चीज को कंबाइन करके हमने कॉमन सेट ऑफ फंक्शनैलिटी या फिर कॉमन सेट ऑफ कोड लिया था और वो चीज हमने सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई कर दी थी। एंड अलोंग विद दैट वी नीड टू कंसिडर ओवर हियर इज ऑब्वियसली इट इज इजी टू क्रिएट। अनदर थिंग इज इट इज ऑल्सो इजी टू कंट्रोल। अगर हमें कोई भी कंटेंट प्लेस होल्डर का रेंडरिंग करना है तो वो पर्टिकुलर कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर जो भी कोड लिखना है हमें उसी कोड के लिए लॉजिक लिखना है, पूरे पेज के लिए लॉजिक लिखना नहीं पड़ेगा फिर से, राइट। सो स्टूडेंट होम के अंदर सिर्फ स्टूडेंट होम का ही हमें लॉजिक लिखना है कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर। लाइकवाइज अपलोड फोटो के अंदर जो वो पर्टिकुलर उतना पोर्शन था जो कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर था, हमें उतना ही लॉजिक वहां पे लिखना है। मतलब ये सारी चीजें कंट्रोल करने में इजी होगी अगर हम मास्टर पेज का यूज करते हैं तो। अनदर थिंग इज दैट आप मास्टर पेज कभी भी चेंज कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द कंटेंट पेज। कंटेंट पेज को तो वो अफेक्ट ही नहीं करेगा, राइट, बिकॉज दोनों अलग अलग एंटिटी है। मास्टर पेज इज द सेपरेट फाइल, कंटेंट पेज इज द सेपरेट फाइल। मीन्स अगर मास्टर पेज के अंदर आप कुछ भी कस्टमाइज करते हो तो वो कंटेंट पेज के ऊपर कंटेंट पेज को अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट इन द सेंस उसके ऊपर वो चेंजेस की साइड इफेक्ट नहीं होगी, राइट, बिकॉज मास्टर पेज अलग पेज है, अगर उसके ऊपर कोई एरर है तो आप उसी के अंदर चेंजेस कर सकते हो, आपको कंटेंट पेज को डीबग करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मास्टर पेज को डीबग करोगे तो वो अपने आप उसको वो एरर को सॉल्व कर देगा और बाद में वो कंटेंट पेज के ऊपर वो मास्टर पेज को इनहेरिट कर देगा, राइट स्टूडेंट्स। तो दीज आर द advantages of master page. Now the another topic is nested master page, right? जैसे हमने नेस्टेड टेबल कंसेप्ट का यूज किया था, आप नेस्टेड मास्टर पेज कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हो, राइट। इसके अंदर क्या है, एक मास्टर पेज के ऊपर से आप दूसरा मास्टर पेज भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। सी ओवर हियर, अगर एक मास्टर पेज डॉट मास्टर है, राइट, उसके ऊपर से आप चाइल्ड मास्टर पेज डॉट मास्टर क्रिएट कर सकते हो और बाद में ये चाइल्ड मास्टर पेज डॉट मास्टर है वो आप कंटेंट पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये जो 3 पेजेस जो हमने कंसिडर किए वो कंसिडर करते हैं, राइट। सो दिस इज मास्टर पेज डॉट मास्टर, जिसके ऊपर मैंने क्या डिजाइन किया, हेडर डिजाइन किया और फुटर डिजाइन किया, राइट। हेडर और फुटर डिजाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे ये जो मिडल पोर्शन है वहां पे मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल रख दिया। आफ्टर दैट उसके ऊपर से मैं दूसरा मास्टर पेज क्रिएट कर रही हूँ, राइट। सो जब भी मैं ये चाइल्ड मास्टर पेज क्रिएट करूंगी उसके ऊपर मुझे बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर मिल जाएगा। मुझे कौन सी चीज को चेंज करना पड़ेगा, दैट इज दिस मिडल पोर्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर होगा वहां पे मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ, दैट इज 1 रो 2 कॉलम, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड की कॉलम है वहां पे मैं लिंक स्पेसिफाई कर देती हूँ, राइट। एंड फ्रॉम दिस चाइल्ड मास्टर पेज डॉट मास्टर मैं कंटेंट पेज को क्रिएट करूंगी। सो कंटेंट पेज के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, हेडर, फुटर और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिंक मिलेगी और यहाँ पे जो मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल को प्लेस किया होगा वो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ताकि मैं ये जगह पे डायनामिक कंटेंट प्लेस कर सकूं, राइट। सो ये जो टेक्निक है वो कब यूज होगी, अगर हमें पूरी वेबसाइट के अंदर थोड़ा पोर्शन है पेजेस का वो हमें एक जैसा ही चाहिए, हमें उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। बट चलो हम हमारा ही एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। इफ वी कंसिडर कि हमें पूरी वेबसाइट के अंदर हेडर और फुटर सेम चाहिए, जो हमने यूज नहीं किया था, हमने क्या किया था, स्टूडेंट के लिए अलग हेडर फुटर था, फैकल्टी, एडमिन और गेस्ट यूजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर और फुटर थे। लेकिन मुझे अगर ऐसा करना है जितने भी यूजर्स है, जितने भी पेजेस है, वो सबके लिए हेडर और फुटर सेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एक मेन मास्टर पेज डिजाइन करूंगी
जिसके ऊपर मैं हेडर और फुटर डिजाइन कर दूंगी। आफ्टर दैट मैं गेस्ट यूजर के लिए अलग से एक मास्टर पेज क्रिएट करूंगी। नाउ एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ दैट मास्टर पेज हमें यहाँ पे एक चीज कंसिडर करनी है, हमें वो जो चेकबॉक्स था दैट इज सिलेक्ट मास्टर पेज, उसको चेक करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं अभी चाइल्ड मास्टर पेज दैट इज गेस्ट यूजर का मास्टर पेज क्रिएट कर रही हूँ। उस वक्त भी अगर मुझे ये मेन मास्टर पेज को कंसिडर करके क्रिएट करना है तो मुझे वो चेकबॉक्स को चेक करना पड़ेगा, दैट इज सिलेक्ट मास्टर पेज। मैं अगर वो चेकबॉक्स को चेक करूंगी, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, तो वो अपने आप मुझे सारे मास्टर पेजेस का लिस्ट प्रोवाइड करेगा। उसमें से ऑब्वियसली मैं ये मेन मास्टर पेज को सिलेक्ट करूंगी और ये मेन मास्टर पेज सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगी। इट मीन्स जब ये चाइल्ड मास्टर पेज दैट इज गेस्ट यूजर का मास्टर पेज क्रिएट होगा तो मुझे क्या रेडी मिलेगा, हेडर और फुटर, राइट। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट करती हूँ index.aspx पेज। किसके ऊपर से मुझे क्रिएट करना है, अब मुझे वो index.aspx पेज, मुझे ये चाइल्ड मास्टर पेज दैट इज दिस गेस्ट यूजर का जो मास्टर पेज था उसके ऊपर से मुझे index.aspx पेज को क्रिएट करना है। इट मीन्स कि जो मैंने चाइल्ड मास्टर पेज या फिर गेस्ट मास्टर पेज के ऊपर जो लिंक्स क्रिएट की थी, यहाँ पे कंटेंट प्लेस होल्डर रखा था, वो मुझे अब यहाँ पे पहले क्या करेगा, वो मेन मास्टर पेज को इसके साथ मर्ज करेगा, फिर ये मास्टर पेज है उसको इंडेक्स पेज के साथ मर्ज करेगा और बाद में हमें ये पूरा पेज दिखाई देगा और ये सारी चीजें वो इंटरनली मैनेज कर देगा, राइट। तो स्टूडेंट्स जो भी मैंने यहाँ पे थियरी लिखी है वो सारी थियरी के अंदर मैंने यही आपको स्पेसिफाई करके दिया है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मास्टर पेज कि अगर आपको पूरी वेबसाइट, ऑब्वियसली बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि पूरी वेबसाइट के अंदर हेडर और फुटर सेम हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द यूजर, राइट। लेकिन कोई कोई वेबसाइट आपको ऐसी मिल भी सकती है जिसके अंदर आपको हेडर और फुटर पूरी वेबसाइट के सारे पेजेस के अंदर सेम मिले, तो उस वक्त आप इसका यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट दैट इज नेस्टेड मास्टर पेज जो आपको कंसीडर करना है, राइट। सो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि मास्टर पेज का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट मास्टर, डायरेक्टिव कौन सा होगा, एट द रेट मास्टर। और अगर आप नेस्टेड पेज का कंसेप्ट यूज करते हो और कोई पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो पहले वो मास्टर मेन मास्टर पेज है उसको कंसीडर करेगा, उसको रिट्राइव करके वो चाइल्ड पेज के ऊपर वो उसको इंक्लूड करेगा और बाद चाइल्ड मास्टर पेज के ऊपर वो इंक्लूड करेगा और बाद में चाइल्ड मास्टर पेज विल बी इंक्लूडेड ऑन द वेब फॉर्म और द वेब पेज और अ कंटेंट पेज। सो दिस इज आल्सो द थिंग जो आप कंसीडर कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मास्टर पेज टॉपिक। मतलब यहाँ पे मास्टर पेज, थीम्स और सीएसएस तीनों के थियरी और प्रैक्टिकल हमने कंप्लीट कर दिया है, right? All right, so we will end our lecture over here.